अब आपका टॉपिक आता है फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। तो फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स की मैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन करता हूँ। तो क्लासिफिकेशन क्या होगा, सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्विचेस यूज्ड, ठीक है, बेस्ड ऑन द कंट्रोल ऑपरेशन, if it is uncontrolled, if it is full controlled, or if it is half controlled. So first one is uncontrolled rectifier. So rectifier means which converts AC to DC. AC to DC means you must have the AC supply and at the load end you will get DC voltage as output across the load. So this operation, this conversion is done using rectifiers. So classification is first uncontrolled rectifiers. So uncontrolled rectifiers converts fixed AC. Fixed AC is always fixed because it is supply. Supply is fixed AC. Fixed AC means peak value remains same, frequency remains same. Fixed AC is converted to fixed DC. Fixed DC means DC is characterized by average value. So fixed DC means average value remains constant. So fixed AC to fixed DC, and what type of DC? Whose average value is constant. So that's why, since the DC is fixed DC, that's why it is called uncontrolled rectifier. So in uncontrolled rectifier, which switch we are using, because of which we are getting fixed DC? We are using uncontrolled switch, that is diode. So why we are getting fixed DC? Because we can vary with diode we cannot decide when the diode should turn on, and we cannot decide when the diode should turn off. So we cannot decide the turn on process as well as the turn off process. As I have told you before, diode is an uncontrolled switch because the turn on process and turn off process cannot be controlled in the case of diodes. So that's why, since we are using diodes in this case, we get fixed AC to fixed DC. So we are using diode, only diodes here. Okay, so this type of rectifier which we are getting using diodes is uncontrolled rectifier. The next classification is full controlled rectifier. Full controlled means you can get variable DC. Variable DC means you can change the average value. You can change the average value at the output terminals. So the DC you are getting, the average value of the DC you are getting can be varied by controlling operation using the switch. So full controlled rectifier is also called full converter. And since it is full controlled, why it is full controlled? Because we are using SCR, and in SCR or thyristor we have a gate terminal, and using gate terminal we can control the turn on process. I can decide at what time the thyristor should turn on. That's why it is controlled switch. So using controlled switch I am getting fixed AC. AC is always fixed. So using controlled switch like SCR, which is thyristor, I am getting variable DC. So why I am getting variable DC? Because I am using controlled switch. So using SCR I am getting fixed AC to variable DC. Why? Because I can control the turn on process using SCR but not using diodes. That's why this is uncontrolled switch and this is fully controlled switch. And in this I get two quadrant operation. What is two quadrant operation? We will see later. Now third classification is half controlled rectifier. In half controlled rectifier we are getting the same operation, fixed AC to variable DC. So fixed AC to variable DC, same we are getting in this case also. So what is the difference between this case and this case? इन दोनों में difference क्या है? इसमें भी मैं SCR ही यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी SCR यूज़ कर रहा हूँ,
बट इसमें SCR के साथ साथ मैं डायोड भी यूज़ करता हूँ एंड डिज़ाइन कुछ इस तरह का होता है दैट आई ओनली गेट 1 क्वाड्रेंट ऑपरेशन. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? फिक्स्ड AC टू वेरिएबल DC दोनों में सेम है, बट this supports 2 quadrant operation. That's why full controlled rectifier or full converter. In this I am getting 1 quadrant operation. That's why this is called half controlled rectifier. Why controlled? Because I am using SCR. Why controlled? Because I am using SCR. Okay. In this particular classification, why we are using diodes, I will tell you later at the right time. So this supports 2 quadrant operation, this supports 1 quadrant operation. What is quadrant operation and in which application I need 2 quadrant operation and in which application I need 1 quadrant operation? That will become clear as we proceed through the lecture. So for now there are 3 classifications. Uncontrolled rectifier using diodes. Why uncontrolled? Because diode, in the case of diode, turn on process and turn off process is not controlled. Fully controlled using SCR. Why fully controlled? Because SCR, in the case of SCR, I can control the turn on process. Half controlled rectifier. Why half controlled? Because it only supports 1 quadrant operation as opposed to 2 quadrant operation in full controlled rectifier. And in this I am using SCR as well as diodes. What is quadrant operation? I will tell you later. Based on pulse number. ठीक है, तो चूंकि हम रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं भाई, तो रेक्टिफायर क्या करेगा? AC से DC, और AC क्या करता है भैया? AC आपकी सप्लाई है, तो सप्लाई प्योर होगी. ठीक है, तो ये आपकी AC सप्लाई होगी ओमेगा T, और ये आपका V इनपुट हो गया. ठीक है, तो ये पाई वाला मोमेंट होगा और ये 2 पाई रेडियंस होगा. तो 2 पाई रेडियंस में एक साइकिल कंप्लीट होती है AC की. तो अब आउट ऑफ 2 पाई रेडियंस V0 जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज आएगा, उसकी कितनी साइकिल आएंगी, उसकी कितनी पल्स आएंगी, वो होता है पल्स नंबर. ठीक है, तो पल्स नंबर को हम M से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो सपोज तेरा सप्लाई तो यही रहेगी, चाहे कोई भी कन्वर्टर हो. सिंगल फेज जो भी कन्वर्टर है, सप्लाई ये रहेगी. 3 फेज होगा तो 3 फेजेस आएंगे. ठीक है, सो पल्स नंबर हो गया नंबर ऑफ आउटपुट पल्सेस फॉर 1 साइकिल ऑफ सप्लाई वोल्टेज. इस एक साइकिल में आउटपुट की कितनी पल्सेज आएंगी, कितनी पल्सेज आएंगी, कितनी पल्सेज आएंगी एक 2 पाई रेडियंस पर. ठीक है, तो सबसे पहले आएगा तेरा 1 पल्स कन्वर्टर. तो 1 पल्स कन्वर्टर हो गया कि एक साइकिल में, इसकी जब एक साइकिल हो जाएगी तो आउटपुट की एक पल्स ही जनरेट होगी बस. ठीक है, तो सपोज मैं डायोड के केस में लेता हूँ. ठीक है, तो डायोड जो है पॉजिटिव साइकिल में ऑन हो जाएगा, नेगेटिव में ऑफ रहेगा. तो डायोड के केस में क्या होगा? ये सिर्फ एक पॉजिटिव साइकिल आएगी, 0 to पाई बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रेस होके आ जाएगा, और नेगेटिव साइकिल में ये ऑफ होगा. तो ये 2 पाई रेडियंस तक सिर्फ इसकी कितनी पल्स आई? एक पल्स आई. तो ये क्या हो गया? 1 पल्स कन्वर्टर हो गया. ठीक है, अब आ जाता है T0, टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट पल्स. ये क्या होता है? 2 पाई बाय पल्स नंबर जनरल. तो यहाँ पे M कितना है? 1. तो ये कितना हो गया? 2 पाई बाय 1 यानी कि 2 पाई. ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है ये रेडियंस में है. ठीक है, तो 2 पाई रेडियंस इसका टाइम पीरियड होगा T0, और ये रेडियंस में है, ये ध्यान रखना. ठीक है, अब ऐसे ही होगा आपका 2 पल्स. ठीक है, तो सिंगल फेज 2 पल्स. सप्लाई अब भी वही है, 2 पाई रेडियंस में आउटपुट की 2 पल्सेज आनी है. ठीक है, सो होगा क्या?
कि जब इसकी पॉजिटिव साइकिल चल रही होगी तो एक डायोड को मैं ऑन करूँगा, तो ये पहली पल्स आ गई, ठीक है। फिर इसकी नेगेटिव साइकिल में मैं किसी दूसरे डायोड को ऑन करूँगा तो ये रिवर्ट होके आएगी और ये फिर से सेम पल्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरी पल्स हो गई। तो ये पाई रेडियंस हो गया, ये 2 पाई रेडियंस हो गया, ये आपका V0 है। और ये कितनी पल्स आ गई? 2। इसका टाइम पीरियड कितना है? पाई रेडियंस। तो फिर से उसी से रिजेंबल करेगा ये 2 पाई बाय 2 यानी कि पाई रेडियंस, ठीक है। सो ये चीज़ है 2 आउटपुट पल्सेज आउट ऑफ 2 पाई रेडियंस ऑफ सप्लाई वोल्टेज, 2 पाई रेडियंस ऑफ सप्लाई वोल्टेज। 1 पल्स आई तो 1 पल्स, 2 पल्स आई तो 2 पल्स। अब आएगा तेरा 3 पल्स, ठीक है। 3 पल्स में क्या होगा? 3 फेज से स्टार्टिंग होती है, तो 3 फेज सप्लाई आएगी, ठीक है। तो 3 फेज सप्लाई आएगी, M की डेफिनेशन वही रहेगी, आउट ऑफ 2 पाई रेडियंस आउटपुट की कितनी पल्सेज आ रही हैं, ठीक है। तो सप्लाई की 2 पाई रेडियंस को मुझे ऑब्जर्व करना है। अब ये हो गया आपका पहला फेज, ये हो गया दूसरा फेज, और ऐसे ही हो गया तीसरा फेज, ठीक है। ये 120 होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही ये पाई मोमेंट हो गया, फिर उसके 120 बाद यानी कि 240 डिग्री पे ये दूसरा स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अब जब भी स्विच ऑन होगा, ये आपकी सप्लाई हो गई, ये बीच में स्विच होगा और यहाँ पे लोड लगा होगा, ठीक है। ये एक फेज़ होगा बेसिकली। तो जब भी एक स्विच ऑन होगा तो ये फेज़ डायरेक्टली इसके क्रॉस आएगा। फिर कुछ टाइम बाद ये दूसरा फेज़ जो है इसके क्रॉस आएगा, लोड के क्रॉस। फिर कुछ टाइम बाद तीसरा फेज़ इसके क्रॉस आएगा किसी और स्विच के थ्रू, ठीक है। तो एक फेज़ कुछ टाइम के लिए आएगा इसका क्रॉस, फिर दूसरा फेज़ आएगा इसका क्रॉस, फिर तीसरा फेज़ आएगा लोड के क्रॉस, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आएगा, ये लोड की वोल्टेज होगी, ठीक है। तो इतने टाइम के लिए सपोज पहला आ गया, ठीक है। फिर इतने ही टाइम के लिए दूसरा आ गया, और फिर ऐसे ही ये तीसरा आ जाएगा। तो मैं इस तरह से ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला होगा तेरा 5/6 यानी कि 30 डिग्रीज, और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका पूरा 2 पाई। तो ऐसे करके 3 पल्सेज आएंगी, ये पूरी 3 पल्स आएंगी, ये आधी और ये आधी मिलके एक पल्स होगी, ठीक है। तो 2 पाई रेडियंस में कितनी पल्स आ गई? 3 पल्स आ गई। तो ये ध्यान रखियो कि जब भी ये स्विच जो भी ऑन होगा, जो सोर्स वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली रोड के क्रॉस आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रेस होगा। यहाँ पे जब ऑन है तो ये डायरेक्टली वोल्टेज बिल्कुल ट्रेस होके आएगा, ऑल्टर नहीं होगा बिल्कुल भी, ना कुछ ड्रॉप होके आएगा, क्योंकि जो स्विच होगा वो आइडियल मान के चलते हैं। तो ये एग्जैक्टली वोल्टेज जो है स्विच ऑन होते ही ये डायरेक्टली लोड के क्रॉस आता है, ठीक है। तो ये छोटा बन रहा है, ये छोटा बस बनाया गया, बट एग्जैक्टली ये इसकी शेप का होगा, बिल्कुल ये एग्जैक्ट, ठीक है। ऐसे नेगेटिव वाला रिवर्ट होके आएगा बस, अगर कहीं पे हो रहा है तो नेगेटिव वाला एग्जैक्टली बिल्कुल वही शेप लेके पॉजिटिव साइकिल अपनी बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़, इसका टाइम पीरियड अगर देखेगा तो ये π/6 है, ठीक है। फिर π/6 प्लस T0, यही तो एक साइकिल है ना इसका। टाइम पीरियड क्या है? ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो ये इतना पार्ट जो है वो टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये टाइम पीरियड है, ठीक है। तो π/6 प्लस टाइम पीरियड, π/6 ये कितना हो गया? π/6 प्लस टाइम पीरियड, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना है इसका? 2 पाई बाय पल्स नंबर 2 π/3, ठीक है। तो π/6 प्लस 2 π/3 ये वाला इंस्टेंट होगा। ऐसे फिर से ये प्लस T0 चलेगा, सो π/6 प्लस T0 ये हो गया, फिर प्लस T0 कर दूंगा तो ये वाला इंस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से चलेगा। तो स्टार्टिंग ध्यान रखियो कि π/6 से स्टार्टिंग होगी, और ये मैं तब ले रहा हूँ जब मैं क्या कहते हैं अल्फ़ा वगैरह कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, जो
फायरिंग एंगल होगा वो कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा भैया। तो जैसे कि यहाँ देखा ना कि ये एक साइकिल है, ठीक है। तो 1 पल्स में देखा तूने कि एग्जैक्टली ये वाला जो है ये वाला रिपीट हो गया, ठीक है। ये 1 पल्स के लिए हो गया। 2 पल्स के लिए क्या देखा कि ये वाली साइकिल रिवर्ट होके आएगी उसके अक्रॉस, तो ये 2 पल्स हो गया, ठीक है। बट 3 पल्स के लिए ऐसा नहीं सोचना कि 2 पाई रेडियंस में 3 साइकिल ऐसे बन के आ जाएंगी, ठीक है। क्यों? बिकॉज एग्जैक्टली ट्रेस होता है। तो एग्जैक्टली ट्रेस होगा तो 3 साइकिल आप इससे निकाल ही नहीं सकते 2 पाई रेडियंस से, ठीक है। तो वो सिर्फ 3 फेज में हो सकता है। फिर ऐसे ही 6 पल्स आएगा। 6 पल्स में क्या होगा, ये और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो 6 पल्स में इस तरह से आएगा। 6 पल्स जब आएगा तो क्लियर हो जाएगा किस तरह से होगा ये, ठीक है। तो 2 पाई रेडियंस में 1 2 3 4 5 6 तेरी सप्लाई आएगी, ठीक है। अब बेसिकली मेरे को तो AC से DC चाहिए। AC वोल्टेज मेरे पास है, मुझे DC वोल्टेज चाहिए। ये वाला वोल्टेज है, ये जो वेव है ये साइनोसॉइडल शेप का है, और फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर से साइनोसॉइडल शेप का आएगा। तो रिपल कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद इसमें रिपल कंटेंट थोड़ा सा कम हुआ, फिर इसमें थोड़ा सा और कम हुआ, और फिर इसमें थोड़ा सा और कम होगा, ठीक है। तो प्योर DC की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं पल्स नंबर इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, रिपल डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। रिपल यानी कि AC कंपोनेंट। फिर थोड़े टाइम बाद ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, और कुछ टाइम बाद इस तरह से हो जाएगा। तो जैसे जैसे पल्स नंबर बढ़ाऊंगा तो यहाँ से ये आया, फिर यहाँ से ये आएगा। तो कुछ टाइम बाद अगर मैं पल्स नंबर को इनफाइनाइट ले जाता हूँ तो प्योर DC आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पल्स नंबर बढ़ाने से आपको अच्छा DC मिलता जाता है। अब आएगा तेरा रिपल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और रिपल फ्रिक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये देखना है। तो F0 M एंड सप्लाई फ्रिक्वेंसी, इन तीनों में क्या रिलेशन है देखते हैं, ठीक है। तो 1 पल्स में क्या आया, पहले तो ये तेरी सप्लाई है, ठीक है। तूने जब 1 पल्स बनाया तो ये एग्जैक्टली पाई तक बिल्कुल ट्रेस हो गया, ठीक है। और ये ट्रेस हुआ और यहाँ तक ये 0 रहा, ये हो गया तेरा 1 पल्स की बात हो गई। अब 1 पल्स में क्या है, ये पाई हो गया और ये 2 पाई हो गया। तो ये क्या है, TS है। यहाँ भी क्या है, ये T0 है। ये TS सप्लाई का टाइम पीरियड, ये T0 इसका टाइम पीरियड। तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। तो इस केस में F0 इज इक्वल्स टू Fs, ठीक है। फिर जब 2 पल्स की बात आई, 2 पल्स की, तो 2 पल्स में ये भी आएगा, ठीक है। तो 2 पल्स में ये आएगा तो अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये, ठीक है। सो ये T0 हो गया। सो ये टाइम पीरियड और इस टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस है, T0 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ TS, ठीक है। अब T0 इज इक्वल्स यानी कि 2T0 इज इक्वल्स टू TS, ठीक है। इसको नीचे ले जा और इसको नीचे ले जा, तो ये हो जाएगा 2/TS इज इक्वल्स टू 1/T0। तो ये हो जाएगा 2Fs इज इक्वल्स टू F0। तो 2Fs इज इक्वल्स टू F0, ठीक है। 1 बाई टाइम पीरियड इज फ्रिक्वेंसी। तो ये F0 कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फिर उसके बाद अब तेरा 3 पल्स आएगा, तो 3 पल्स में क्या हो जाएगा, 3Fs हो जाएगा। F0 कितना हो जाएगा, 3Fs। तो M पल्स के लिए कितना हो जाएगा भैया, F0 इज इक्वल्स टू M इंटू Fs, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया। रिपल फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू M इंटू Fs।
रिपल फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी होगा जो तेरा आउटपुट वेव का फ्रीक्वेंसी होता है, वही रिपल फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तेरे को रिपल फ्रीक्वेंसी 0 चाहिए, चूँकि तुझे डीसी साइड पे फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए, मुझे आउटपुट में प्योर डीसी चाहिए। ठीक है, डीसी यानी कि फ्रीक्वेंसी मुझे 0 चाहिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एसी कंटेंट होगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसमें। ठीक है, तो एसी कंटेंट रिड्यूस करते जाओ, फ्रीक्वेंसी रिपल फ्रीक्वेंसी कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। एफ नॉट इज इक्वल्स टू एम इंटू एफ एस। ठीक है, तो एफ नॉट इज इक्वल्स टू पी इंटू एफ एस। तो 1 पल्स के लिए एफ नॉट इज इक्वल्स टू एफ एस, 2 पल्स के लिए एफ नॉट इज इक्वल्स टू 2 एफ एस, 3 पल्स के लिए एफ नॉट इज इक्वल्स टू 3 एफ एस, 6 के लिए 6 एफ एस। ठीक है, तो मुझे प्योर डीसी नहीं मिल रहा। ठीक है, चाहिए मुझे प्योर डीसी। रिपल्स आ रहे हैं, रिपल्स यानी कि जो भी वेव है उसमें एसी कंपोनेंट है। ठीक है, तो एसी कंपोनेंट है, एसी मेरे को चाहिए नहीं, तो वो क्या होंगे, अनवांटेड सिग्नल प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, उस वेव का कुछ कंपोनेंट एसी नेचर का है, और वो जो भी नेचर हो, जिस भी फ्रीक्वेंसी का वो हो, मुझे तो प्योर डीसी चाहिए। वो जिस भी फ्रीक्वेंसी का होगा, ओमेगा, 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, वो सारे क्या है मेरे लिए हार्मोनिक्स है, चूँकि मेरे को डीसी साइड पे रिक्वायर्ड नहीं है। जो मेरा लोड है उसको वो डीसी पे ही वर्क करेगा। ठीक है, जो लोड है उसको डीसी चाहिए, एसी उसको इनपुट जाएगा, तो उसका कुछ रिजल्टेंट क्या नहीं आएगा, एक्टिव पावर आउटपुट नहीं बनेगा उसका। ठीक है, तो जो भी डीसी पार्ट है वही कुछ यूज़फुल पावर में रिजल्ट करेगा। जो भी हार्मोनिक्स है उससे सिर्फ हीटिंग प्रॉब्लम होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो लोड इस तरह का, इसलिए मुझे परफेक्ट डीसी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा भैया, टी नॉट टाइम पीरियड ऑफ द आउटपुट पल्स इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय पल्स नंबर, एंड टी नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ नॉट। ठीक है, तो टी नॉट यानी कि टाइम पीरियड डिक्रीज होता जा रहा है, यानी कि छोटी होती जा रही है, पल्स छोटी छोटी होती जा रही है। तो टी नॉट कम होता जा रहा है, कब, जब मैं पल्स नंबर बढ़ाता जा रहा हूँ, एंड फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज। टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी करेगी इंक्रीज। ठीक है, सो अब दिमाग में तो ये आएगा कि भैया पल्स नंबर बढ़ाते जाओ और आपको रिपल जो है वो रिड्यूस होता रहेगा और आपको प्योर डीसी इन दी एंड मिल जाएगी आपको। बट ये जो आप पल्स नंबर बढ़ा रहे हो, इससे कुछ डिज़ाइन में भी तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा लग रहा होगा, तो नंबर ऑफ थायरिस्टर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तभी तो पल्स नंबर बढ़ रहा है। तो पल्स नंबर बढ़ाना ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन वगैरह सब कुछ देखना होता है। तो पल्स नंबर एक अब लिमिट तक ही आप बढ़ा सकते हो, 6 पल्स 12 पल्स, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, सो वी गेट मोर प्योर डीसी बाय कीप ऑन इंक्रीजिंग एम, बट ये थ्योरेटिकल नहीं है, एक लिमिट तक हम एम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो एम इंक्रीज़ करेगा, पल्स नंबर इंक्रीज़ करेगा, तो 2 पाई रेडियंस में ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेस मेरे को मिलेंगी। ठीक है, टी एम इंक्रीज़ करा, टी नॉट डिक्रीज़ करेगा, एफ नॉट इंक्रीज़ करेगा, रिपल्स रिड्यूस होंगे, एंड रिपल्स रिड्यूस हो रहे हैं यानी कि एसी कंटेंट रिड्यूस हो रहा है, एंड डीसी साइड में एसी कंटेंट रिड्यूस होने का मतलब हार्मोनिक्स कम हो रहे हैं। ठीक है, सो हायर द पल्स नंबर बेटर द क्वालिटी ऑफ वेव फॉर्म एट द लोड। ठीक है, बट जैसे जैसे मैं पल्स नंबर को इंक्रीज़ करूँगा कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, मुझे ज़्यादा डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे फॉर हायर पल्स नंबर। ठीक है, हायर पल्स नंबर मेरे को ज़्यादा डिवाइसेस लगाने से ही मिलेगा। 1 पल्स मेरे को एक सिंपल डायोड लगाने से मिल गया। ठीक है, 2 पल्स मेरे को एक डायोड से नहीं मिल सकता, ना एक थायरिस्टर से मिल सकता, कम से कम 2 थायरिस्टर मेरे को लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मुझे पल्स नंबर ज़्यादा चाहिए, तो पल्स नंबर ज़्यादा कैसे मिलेगा, जब आप ज़्यादा डिवाइसेस लगाओगे। ठीक है, तो कॉस्ट इंक्रीज़ करती है। ठीक है भैया, देखिए डिवाइस होता है SMPS, इसमें हम मॉसफेट यूज़ करते हैं। ठीक है, मॉसफेट की क्या होती है, 2 क्वालिटी होती हैं। एक तो है लो पावर लेवल पे ही ऑपरेट कर सकते हो आप, पावर लेवल। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज होगा।
ठीक है, कि आप इसको हायर पावर लेवल यानी कि जो आपका ट्रांसमिशन लेवल वोल्टेज है उस पर ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे बेस्ट होगी। ठीक है, किलोहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इसके लिए एडवांटेज है। ठीक है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि ऑन से ऑफ एंड ऑफ से ऑन, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ऑन से ऑफ से ऑन, ये हो गया स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी बेस्ट है सारे डिवाइसेस में। ठीक है, और क्योंकि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बेस्ट है तो मैंने डिवाइस के फैब्रिकेशन में कुछ ऐसा करा कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी अच्छी हुई, तो उस फैब्रिकेशन से पावर आउटपुट नहीं आया। ठीक है, तो ये क्वालिटी डालने से ये वाली क्वालिटी क्या होगी, डाउन होगी। ठीक है, अब SMPS में हम मॉसफेट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक तरीका ये भी है कि सबसे पहले आप AC को DC में कन्वर्ट करो। ठीक है, AC को DC में कन्वर्ट करो। AC है आपकी सपोज 50 हर्ट्ज़ की, DC में कन्वर्ट करा, कुछ भी पल्स नंबर हो, जो भी है पल्स नंबर, सपोज 3 पल्स नंबर है। ठीक है, अब इसी DC को AC में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसी DC को AC में कन्वर्ट करना है, बट ये अब जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको किलोहर्ट्ज़ में लेके जानी है, 100 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, अब इसको DC में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये किलोहर्ट्ज़ में कैसे हुआ, ये SMPS कर रहा है सब। ठीक है, अब इसको DC में कन्वर्ट कर दो। अब ये जो DC मिलेगा आपको, ये नियरली ज़ीरो फ्रीक्वेंसी का होगा, यानी कि प्योर DC होगा। ठीक है, क्यों, चूँकि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है। ठीक है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इस तरह से है, तो ये ऊपर वाला पार्ट आएगा। ठीक है ना, तो ये ऊपर वाला पार्ट इस तरह से कट के आएगा और ये बेसिकली आपको इस तरह से प्योर DC आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सब फ्रीक्वेंसी का खेल है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दी, उसके बाद DC में कन्वर्ट करा। ठीक है, सो SMPS, अब भैया SMPS से आपको प्योर DC मिल रहा है लगभग। ठीक है, नियरली प्योर DC मिल रहा है, बट SMPS आपको दे रहा है हाई क्वालिटी DC। ठीक है, बट लो पावर लेवल तक ही आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लो पावर लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो तो AC से DC में कन्वर्ट आप कर दोगे और आपको प्योर DC मिल जाएगा। बट सपोज़ आपको एक HVDC लाइन है और आपको DC चाहिए। ठीक है, तो HVDC लाइन सपोज़ ये आपकी प्लस माइनस 500 kV की लाइन है HVDC की, तो ये आपको SMPS नहीं दे सकता। ठीक है, तो हायर पावर लेवल पे SMPS काम नहीं करेगा। लोअर पावर लेवल वॉट्स वगैरह की रेटिंग जो है उस पे आपका SMPS काम कर जाएगा। बट सपोज़ आप ट्रांसमिशन लेवल पे जाना चाहो कि SMPS को मैं ट्रांसमिशन लेवल पे यूज़ कर लूँ HVDC के केस में, तो आपका ये ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो HVDC में क्या होता है, HVDC में SMPS तो हम कर नहीं रहे यूज़, तो वहाँ पे क्या होता है कि कई सारे थायरिस्टर सीरीज़ में लगे होंगे। ठीक है, और फिर यही अरेंजमेंट पैरेलल में लगा होगा ऐसे ही। ठीक है, इस तरह से एक पूरा ये एक पैनल बना होगा थायरिस्टर्स का। तो इस तरह से हायर पल्स नंबर और ये सब हाई क्वालिटी DC आउटपुट पे आती है। ठीक है, इतने सारे थायरिस्टर यूज़ करे जाते हैं, कई हज़ार, लगभग 2000, 5000, 10,000 इतने थायरिस्टर यूज़ होते हैं एक वाल्व में। ठीक है, तो इतने सारे थायरिस्टर, तो इसलिए बोला जाता है कि जो इनिशियल कॉस्ट है HVDC की वो हाई है। क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस, इतना अरेंजमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे प्योर DC लाने के लिए आउटपुट में। ठीक है, तो SMPS से हाई क्वालिटी DC मिल रहा है, बट लो पावर लेवल पे ही आप ऑपरेट करवा सकते हो SMPS को।
रेक्टिफायर क्या कर रहा है आपका, AC से DC में ही कन्वर्ट कर रहा है, बट ये जो DC है इसकी क्वालिटी क्या है, कम है, ठीक है, इसकी क्वालिटी डाउन है। बट रेक्टिफायर को आप हाई पावर लेवल पे ऑपरेट करवा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों की वो बात हो गई। सो यानी कि यहाँ तेरे को एक चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना है, वो क्या है, क्वालिटी, और यहाँ पे तेरे को दूसरी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना है, वो क्या है, लो पावर लेवल, ठीक है। बट मैं तो हाई पावर लेवल की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को रेक्टिफायर ही यूज़ करना है, ठीक है। अब रेक्टिफायर क्या कर रहा है, AC से DC में कन्वर्ट कर रहा है, तो आउटपुट पे DC चाहिए, यानी कि जो भी आपका लोड होगा उसको DC दिया जाएगा, तभी वो उस जो लोड होगा आपका उसके अक्रॉस DC वोल्टेज होगा। सपोज 240 वोल्ट है, तो इसको 240 ही मिलेगा DC, तभी ये इस सप्लाई को यूज़फुल पावर में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये जो लोड है वो इस तरह का है, इसको DC मिलेगा तो ही ये क्या कर सकता है, कुछ यूज़फुल वर्क कर सकता है, ठीक है। इसमें प्लस कुछ AC कंपोनेंट भी होगा, तो इस AC कंपोनेंट से कोई यूज़फुल वर्क नहीं होगा, ठीक है। ये लोड इस तरह से डिज़ाइंड है, तो मेरे को DC चाहिए, क्यों, क्योंकि जो लोड है उसको वो DC पे ही यूज़फुल वर्क आपको देगा, AC पे वो वर्क नहीं देगा कुछ भी। AC से बस क्या होगा, हीटिंग होगा, तो ये डिवाइस क्या होगा, इसमें बस हीटिंग होगा और ये जल्दी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। सो आपको कोशिश करना है कि रेक्टिफायर जो है आपका, उसका जो आउटपुट आएगा उसकी रिपल फ्रिक्वेंसी F0 वो कम से कम रखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका DC मोटर है, ठीक है, तो DC मोटर को मैं AC इनपुट दूंगा तो टॉर्क जो है वो एक बार इस डायरेक्शन में लगेगा पॉजिटिव साइकिल में, तो नेगेटिव साइकिल में इस डायरेक्शन में लगेगा, तो कोई रिजल्टेंट टॉर्क डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो और DC दूंगा तो एक यूनि डायरेक्शनल टॉर्क रोटर पे लगेगा। तो DC दे रहा हूँ तभी तो यूज़फुल वर्क हो रहा है, AC दे रहा हूँ, AC देने की वजह से करंट्स फ्लो करेंगी, बट उन करंट्स की वजह से बेसिकली जो सप्लाई है उसमें अगर DC प्लस AC होगा, तो ये जो DC वाला पार्ट होगा ये तो एक सर्टेन डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा, तो यूज़फुल वर्क इस कंपोनेंट से हो रहा है, ठीक है। जो AC कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं सप्लाई में, उसकी वजह से जो करंट्स होंगी उस करंट्स में भी DC प्लस AC होगा। तो इस करंट में जो AC कंपोनेंट्स हैं, उन AC कंपोनेंट से टॉर्क जो है वो एक डायरेक्शन में लगेगा पॉजिटिव साइकिल में, और इस डायरेक्शन में लगेगा नेगेटिव साइकिल में। तो टॉर्क जो है वो रिजल्टेंट कितना हो गया, फॉर वन साइकिल 0 हो गया। तो करंट तो फ्लो कर रही है ना, AC करंट फ्लो कर रही है, बट रिजल्टेंट टॉर्क नहीं आ रहा, तो सिर्फ क्या होगा, इस करंट की वजह से हीटिंग हो पा रही है, टॉर्क डेवलप नहीं हो पा रहा, ठीक है। सो बेसिकली सिर्फ हीटिंग हुआ, यूज़फुल वर्क कोई हुआ नहीं। तो यूज़फुल वर्क यानी कि टॉर्क किससे डेवलप हो रहा है, सिर्फ DC से डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये बात है। AC से DC कन्वर्जन कर रहे हैं ना, तो DC जो होगा, तो DC साइड DC मेरे को चाहिए, तो DC लोड, सपोज मैं DC मोटर लेता हूँ और ये कितना है, 5 हॉर्स पावर इसकी रेटिंग है, ठीक है। तो ये जो रेटिंग है ये प्योर DC के हिसाब से है इसकी रेटिंग, ठीक है। तो प्योर DC के हिसाब से है, सपोज इसको 240 पे चलाते हैं, ठीक है, 5 हॉर्स पावर 240 वोल्ट्स का DC मोटर है, ठीक है। तो इसकी जो वाइंडिंग्स होंगी वो किस हिसाब की होंगी, 5 हॉर्स पावर डिवाइडेड बाय 240 वोल्ट्स, ये जो करंट निकल के आएगा जितना भी एम्पियर्स होगा उस रेटिंग की इसकी वाइंडिंग्स होंगी इस DC मोटर की, ठीक है। अब देख कितना होता है हॉर्स पावर, 746 वाट्स। पॉइंट के आगे भी कुछ लगता है, पॉइंट के आगे पता नहीं, ठीक है। तो रेटिंग हो गया 240 वोल्ट्स प्योर DC,
ठीक है। तो ये डीसी के हिसाब से है इसकी रेटिंग कि इतना रेटिंग पे आप चलाओ, बढ़िया काम करेगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी, रेटिंग्स करस्पॉन्ड टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। इसका मैक्सिमम आउटपुट 5 हॉर्स पावर से ज़्यादा होगा, बट ये 5 हॉर्स पावर आप इससे आउटपुट लोगे तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको देगा, ठीक है। तो ध्यान रखियो, रेटिंग्स करस्पॉन्ड टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। तो सपोज़ मैं इससे 5 हॉर्स पावर का आउटपुट ले रहा हूँ, ठीक है। तो 5 हॉर्स पावर का आउटपुट ले रहा हूँ और इसका जो 5% है वो सपोज़ लॉसेस में जा रहा है, ठीक है। तो आउटपुट का 5% लॉसेस में जा रहा है, यानी कि 5 का 5% कितना हो गया, ठीक है, 0.25 हॉर्स पावर। तो ये लॉसेस में जा रहा है, लॉसेस यानी कि हीट, ठीक है। तो इतनी हीट इसमें प्रोड्यूस हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो प्योर डीसी के हिसाब से इतनी हीट इसमें प्रोड्यूस होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अब क्या हो रहा है, जो मैं रेक्टिफायर से इसको डीसी दे रहा हूँ उसमें 240 के साथ साथ, प्योर डीसी के साथ साथ उसमें कुछ एसी कंपोनेंट भी हैं। तो ये जो एसी कंपोनेंट है, इन एसी कंपोनेंट की वजह से वाइंडिंग्स में एक्स्ट्रा करंट भी फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इस प्योर डीसी कंपोनेंट की वजह से एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो ये यूनिडायरेक्शनल टॉर्क मेरे काम का है, और ये जो है ये बाई डायरेक्शनल टॉर्क है। तो बाई डायरेक्शनल की वजह से कोई रिजल्टेंट टॉर्क नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये मेरे यूज़फुल वर्क मुझे नहीं दे रहा। बट ये किस में और दिक्कत कर रहा है, ये हीटिंग और बढ़ा रहा है। तो इससे बस हीटिंग और बढ़ रही है। तो बेसिकली ये जो इसकी रेटिंग थी 5 हॉर्स पावर, उसके करस्पॉन्ड मैंने कितना बताया कि 0.25 हॉर्स पावर की हीट मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ कंसिडरिंग प्योर डीसी। बट अगर प्योर डीसी नहीं है तो ये हीट प्लस सम एक्स्ट्रा हीट है ना, तो मशीन में जो है एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो रही है अब। तो यानी कि मैं 5 हॉर्स पावर तक नहीं चला सकता अपनी मशीन को, ठीक है। तो अगर मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो मुझे अपनी मशीन को 5 हॉर्स पावर से कम पे चलाना होगा। तो सपोज़ मैं 3 पल्स लेता हूँ, ठीक है, 3 पल्स कन्वर्टर, ठीक है। तो 3 पल्स में 3 पल्स आएंगी। तो ये प्योर डीसी नहीं है, इसमें एसी कंपोनेंट्स भी हैं, तो डीसी प्लस इसमें एसी है, ठीक है। तो सपोज़ मैं 3 पल्स से 4.75 तक चला पा रहा हूँ, ठीक है। फिर 6 पल्स लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 6 पल्स और ज़्यादा अच्छा हो गया, तो उसमें रिपल और कम होगा। तो रिपल और कम होगा यानी कि डीसी प्लस एसी और एसी कंपोनेंट कम है, ठीक है। तो अब मैं और ज़्यादा रेटिंग तक चला सकता हूँ। सो मैं लगभग 4.85 सपोज़ मैं चला सकता हूँ, ठीक है। अब बात आती है SMPS की, ठीक है। SMPS मेरे को प्योर डीसी देगा, ठीक है। प्योर डीसी देगा यानी कि सिर्फ डीसी है। तो डीसी है यानी कि सिर्फ ये वाली हीट है जो प्योर डीसी के केस में मैंने कंसिडर करी। तो एक्स्ट्रा हीट तो नहीं आई ना, तो एक्स्ट्रा हीट नहीं आई यानी कि मैं मशीन को फुल उसकी कैपेसिटी तक यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसकी कैपेसिटी तक मैं उसको फुल यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको 5 हॉर्स पावर तक यूज़ कर सकता हूँ। बट 5 हॉर्स पावर SMPS हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं कि भाई चलो SMPS हमने 5 हॉर्स पावर का बना भी दिया, तो मेरे को प्योर डीसी मिल जाएगा, और वो प्योर डीसी मैं इस डीसी मोटर को दूंगा। इसमें करंट्स फ्लो करेंगी, डीसी करंट फ्लो करेगी, और इस डीसी करंट की वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क होगा, ठीक है। और टॉर्क यूनिडायरेक्शनल होगा, चूँकि टॉर्क यूनिडायरेक्शनल है और एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का टॉर्क है, ठीक है। तो ये क्या होगा, बेसिकली टॉर्क प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो करंट में रिपल होंगे, तो जो टॉर्क डेवलप होगा इस वाली करंट से उसमें भी रिपल्स होंगे, ठीक है। तो अगर ये प्योर डीसी करंट है तो ये जो टॉर्क होगा ये भी डीसी टॉर्क होगा, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा। इसमें रिपल्स हैं, करंट में अगर रिपल्स हैं तो टॉर्क में भी रिपल्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये करंट इस टॉर्क को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई।
सो बेसिकली ये हो गया कि AC कंपोनेंट जितना ज़्यादा होगा उतना कम मैं यूटिलाइज कर पाऊँगा अपनी मशीन को, ठीक है, जो DC सोर्स के लिए डिज़ाइन हुई है बेसिकली। अब HVDC में हम SMPS यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि SMPS लो पावर लेवल के लिए नहीं बना, ठीक है। तो SMPS में हम 12 पल्स कन्वर्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमने इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स क्या देखा ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ DC मोटर। हार्मोनिक्स यानी कि DC मोटर के केस में हार्मोनिक्स क्या हो गया, AC कंपोनेंट्स। तो AC कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, AC कंपोनेंट्स की वजह से करंट्स में भी AC कंपोनेंट आ रहे हैं, तो उनकी वजह से सिर्फ हीटिंग प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ यूजफुल पावर जनरेट नहीं हो रहा, टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा, तो सिर्फ ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम हो रही है उससे, ठीक है। सो हार्मोनिक्स यानी कि AC कंपोनेंट्स ओवर हीट द मशीन वाइंडिंग्स एंड देयरफॉर वी कैन नॉट यूटिलाइज द मशीन टू इट्स फुल कैपेसिटी। तो देयरफॉर वी मस्ट डीरेट द मशीन यानी कि यूज द मशीन एट रिड्यूस्ड कैपेसिटी व्हेन फेड विद द कन्वर्टर्स, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हो गया। अब हार्मोनिक्स यानी कि AC, हार्मोनिक्स प्रोड्यूस पल्सेटिंग टॉर्क इन द रोटर, ठीक है। अब पल्सेटिंग टॉर्क जो है, एक तो पल्सेटिंग टॉर्क हो गया और एक जो DC कंपोनेंट है उसकी वजह से यूनिडायरेक्शनल टॉर्क हो गया, तो यूनिडायरेक्शनल डोमिनेट करेगा। तो इसलिए पल्सेटिंग टॉर्क जो है वो बड़ी मशीन्स में क्या होगा, फॉर पावर मोटर यानी कि बिग मशीन्स द रोटर इनर्शिया विल डैम्प दिस पल्सेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द हार्मोनिक्स। तो ये डैम्प आउट हो जाएगा, क्यों, बिकॉज रोटर का इनर्शिया इतना ज़्यादा होगा। रोटर को कौन घुमा देगा, जो DC है, उसकी वजह से जो टॉर्क हुआ वो इस रोटर को घुमा देगा। अब जब रोटर घूम गया उसके बाद ये जो फालतू के जो टॉर्क हो रहे हैं, पल्सेटिंग टॉर्क जो है, उसको ये डंप आउट ऑलरेडी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये काफ़ी छोटा होगा। हार्मोनिक्स को डोमिनेट कर रहे होंगे, कौन सा, DC कंपोनेंट डोमिनेट कर रहा होगा हार्मोनिक्स को, इसलिए ये जो है ये डंप आउट हो जाएगा।